morning students. In last lecture complete the concept of probability. उसमें हमने प्लेइंग कार्ड्स के रिलेटेड उसका कंसेप्ट हमने क्लियर किया था, डिफरेंट टाइप ऑफ सूट्स, ओके, नंबर ऑफ कलर्स, ओके, एंड ऑल्सो डाइस के रिलेटेड भी कंसेप्ट हमने क्लियर किया था. नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 15.1. एग्जाम्पल नंबर 1, complete the following statement. Here the first question, probability of an event E and the probability of the event not E. Event E and plus not E. So what is the sum of the two event E and not E is equals to 1. Okay students, आपके पास एक फॉर्मूला थी P of A plus P of A bar, otherwise P of A dash. Okay, A means the event A and A dash means complement of event A. It's always the addition is 1. Okay, now the second question, the probability of an event that cannot happen is blank and such an event is called. Students देखो यहाँ पे लिखा है the probability of an event cannot be happen. Cannot be happen means event ही नहीं हो रही है. Okay, so what is the probability? Then its probability is 0. Okay, and event is called impossible event. Okay, impossible event, and impossible event is probability is 0, and the probability is 0, then the event is called impossible event. Now third question, the probability of an event that is certain to happen is and such an event is called. स्टूडेंट्स यहाँ पर बोला है कि probability of an event is certain हुआ, इवेंट हो रही है, ओके, देन certain event यानी it's also known as the sure. Okay, means its probability is 1 and an event is called the sure event, otherwise certain event. दोनों में से आप कोई भी यहाँ पर पुट कर सकते हो. If the probability is 1, then event is called sure event, otherwise certain event. 4 number, the sum of the probability of all the elementary events of an experiment. कोई एक एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स है और सबका प्रोबेबिलिटी का एडिशन क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑलवेज 1. ओके, सपोज द इवेंट्स ए है, उसकी एलिमेंट्री इवेंट्स E1 E2 E3 अप टू E5 5 इवेंट्स हो रही है, तो सबका एडिशन ऑलवेज क्या होगा? 1. 5 नंबर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1. ओके, एक स्टेटमेंट था स्टूडेंट्स. ओके, कोई भी प्रोबेबिलिटी होगी उसकी इवेंट ऑलवेज इज बिटवीन 0 to 1. 0 इज पॉसिबल, यस, इफ द इवेंट इज इम्पॉसिबल इवेंट. 1 इज पॉसिबल, यस, इफ द सर्टेन इवेंट, अदरवाइज श्योर इवेंट. अदरवाइज any events probability is always between 0 to 1. Okay, that is the greater than or equals to P of A is greater than or equals to 0 and less than or equal to 1. Now second and third question students आपको सेल्फ ट्राई करना है. Now 4 number question, which of the following cannot be the probability of an event? कोई भी probability के event always is between 0 to 1. Also the negative numbers be यानी event is not possible of negative numbers. Okay, now here 2 by 3 here numerator is small and here 1 2 by 3 that is 0 point something means ये possible हो सकता है. Okay, 15 by 100 that is 15% that is 15 by 100, also the 0.15 0.7 and here the negative minus 1.5 यानी any events probability is negative number is not possible. Okay, तो minus 1.5 possible नहीं होगा. Now example number 5, if the P of E is equals to 0.05 and what is the probability of not E? तो ये हमारे फर्स्ट जो एग्जाम्पल था फिल इन द ब्लैंक्स उसी के रिलेटेड. कोई भी इवेंट और नॉट ई दोनों का एडिशन ऑलवेज क्या होगा? 1. तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं P of E प्लस P of E bar, अदरवाइज नॉट E, अदरवाइज E dash, इट्स ऑलवेज सम इज 1. नाउ हियर P of E is equals to 0.05, substitute the value 0.05 plus P of E bar that is not E is equals to 1. means P of E bar that is called not E means 1 minus 0.05 we get 0.95. तो not E की probability कितनी होगी? 0.95.
Now example number 6, a bag contains the lemon flavor candies only and the Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability an orange flavor candy and a lemon flavor candy? स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बैग है, ओके, उसमें पूरी बैग लेमन कैंडी से भरी हुई है और मालिनी टेक आउट द वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, उसमें देखे बिना वो एक कैंडी यहाँ पर ले रही है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको इवेंट सपोज कर लेते हैं। सपोज द इवेंट ए, एन ऑरेंज फ्लेवर, एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ओके, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे पूरी बैग किससे फिलअप है? लेमन फ्लेवर की कैंडी से ही भरी हुई है। तो आप उसमें देखे बिना कोई भी रैंडमली एक कैंडी चूज करोगे तो वो कौन सी वो होगी कैंडी? ओके, लेमन फ्लेवर की ही आएगी। एंड ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी आने के पॉसिबल है यहाँ पर? नो, मीन्स दैट इज जीरो एंड इट इज कॉल्ड द इम्पॉसिबल इवेंट। अब जितनी भी बार ट्राई ले लो, ओके, वहां से एक कैंडी चूज करोगे तो आपको ऑलवेज क्या मिलेगा? लेमन फ्लेवर ही मिलेगा, ऑरेंज फ्लेवर मिलने वाला नहीं है। दैट इज द इम्पॉसिबल इवेंट एंड इट्स प्रोबेबिलिटी इज जीरो। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, okay, the second question, it's called the event B, a lemon flavor candy, lemon flavor candy, and then now the one candy is selected, okay, and all the here a bag contains the lemon flavor candy only, यानी सभी की लेमन फ्लेवर की कैंडी है। तो आप कोई भी रैंडमली चूज करोगे तो कौन सी कैंडी आएगी स्टूडेंट्स? यहाँ पर लेमन फ्लेवर, ओके। तो उसका मतलब ये हुआ कि आप जितनी भी बार ट्राई करोगे तो कौन से फ्लेवर की कैंडी आएगी? लेमन। दैट इज कॉल्ड द श्योर इवेंट, ओके। अदरवाइज एक श्योर इवेंट का एग्जांपल लेते हैं। द सन इज राइजिंग इन ईस्ट, ओके। आप डेली देखोगे तो सन कहाँ पे राइज होगा? ईस्ट में, ओके। तो यानी एवरीडे वो सही है। दैट इज कॉल्ड द श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट एंड इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1। तो हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अ लेमन फ्लेवर कैंडी, तो मीन्स सभी कैंडीज कौन सी है? लेमन फ्लेवर की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1, ओके। एंड नाउ इट्स कॉल्ड द सर्टेन इवेंट, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, it is given that in a group of the 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.0992 and what is the probability that the 2 students have the same birthday? स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा दिया है, 3 स्टूडेंट्स है, 3 स्टूडेंट्स में से द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, 3 स्टूडेंट्स में से कोई भी 2 स्टूडेंट्स के बर्थडे सेम डेट पर नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी इज द 0.992, दैट इज द 0.992। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? तो सेम बर्थडे हो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इवेंट आपको यहाँ पर है कि 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, तो सपोज द इवेंट ए, यानी 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थ डेट, ओके। नाउ हियर फाइंड द P of A, but here given that 2 students not have the same birthday is the 0.992, that is the P of A dash is given here, A dash, otherwise P of A bar is given 0.992, okay. But we know that P of A plus P of A dash, otherwise P of A plus P of A bar is equals to 1, okay. दोनों का एडिशन कितना होगा? 1, means P of A plus P of A bar is equals to 1, that is the P of A is equals to 1 minus P of A bar, means 1 minus 0.992 we get 0.008। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन था कि 2 students have the same birthday, okay, find the probability that the 2 students have the same birthday is 0.008। तो ये हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी, ओके। यानी हम जानते इवेंट हो और इवेंट नहीं हो दोनों का एडिशन ऑलवेज कितना होगा? 1, ओके। नाउ एग्जांपल नंबर 8, इन अ बैग 3 रेड बॉल्स
5 black balls and a ball is drawn from the bag, find the probability that the ball is the red and the not red. स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बैग में टोटल कितने बॉल है? 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल. ओके, यानी टोटल कितने हो गए बॉल्स? नाउ हियर द 3 plus 5, okay, we get 8 balls. 8 ball in a bag. Here 3 red and 5 black. Find the probability that the ball is, यहाँ से randomly स्टूडेंट्स आपको एक बॉल सिलेक्ट करना है. ओके, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग रैंडमली, यानी रैंडमली आपको सिलेक्ट करना है. इन प्रोबेबिलिटी जनरली सिलेक्शन इज रैंडमली सिलेक्शन, बिकॉज अगर आप देख के वहां से करोगे, पिक करोगे, तो वो आपको जो चाहिए वही बॉल सिलेक्ट होगा. ओके, बट यहाँ पे आपको कैसे करना है? रैंडमली, बिना देखे हुए आपको रैंडमली एक बॉल सिलेक्ट करना है. तो सिलेक्टेड बॉल क्या हो सकता है? रेड भी हो सकता है या ब्लैक. एंड हियर द फाइंड द प्रोबेबिलिटी द सिलेक्टेड बॉल इज रेड. तो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, इवेंट ए. इवेंट ए क्या होगा? द सिलेक्टेड बॉल इज रेड कलर. ओके, सिलेक्टेड बॉल is red. Okay, what is the probability of A? Here probability means, probability का formula है students. Here numerator यानी suppose the m upon n. So what is the m and what is the n? N is the total outcomes of the experiment and m means total outcomes of event. Numerator में event के outcomes और डिनोमीटर में क्या हो गया? टोटल एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स. नाउ द हियर टोटल कितने बॉल है यहाँ पर? 8 एंड सिलेक्टेड बॉल इज रेड. तो रेड कितने? 3. तो सिलेक्शन जो इवेंट हुई वो रेड कलर के बॉल सिलेक्ट हुआ, यानी 3 में से एक होगा, दैट इज 3/8. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज नॉट रेड, दैट इज कॉल्ड द ए बार, मीन्स नॉट रेड. लिख सकते हैं ए इवेंट बोला आपने, रेड कलर का बॉल सिलेक्ट हुआ, तो नॉट रेड मीन्स रेड नहीं हुआ, दैट इज द ए बार. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार? पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 minus 3/8. 1 minus p of a हो जाएगा, बिकॉज द p of a plus p of a bar is 1. ओके, p of a plus p of a bar is 1. तो व्हाट इज द p of a? 1 minus p of a bar. व्हाट इज द p of a bar? 1 minus p of a. यानी आपको यहाँ पर एलसीएम लेना होगा. 8 8 1 जा 8 minus 3 we get 5. अदरवाइज आप सेकेंड और मेथड से भी कर सकते हो. नॉट रेड, द सिलेक्टेड बॉल इज नॉट रेड मींस इसका मतलब ये होगा कि ब्लैक बॉल सिलेक्ट हुआ होगा एंड टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इज 5, दैट इज 5/8. तो आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो. सेम क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 9. अ बॉक्स कंटेन्स द 5 रेड, 8 व्हाइट एंड 4 ग्रीन मार्बल्स. ओके, टोटल 5 रेड, नेक्स्ट 8 व्हाइट and 4 green marbles in a bag, that is the total marble. तो टोटल क्या होगा? सम ऑफ द, यानी 8 4 12, 12 और 5 17 marbles in a bag. Okay, now one marble taken out of the box at randomly. स्टूडेंट्स ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. randomly, randomly सिलेक्शन करना है आपको. ओके, and one marble taken out from the randomly selection, what is the probability that the marble is red? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ए इवेंट बोल दो. द सिलेक्टेड मार्बल इज, सिलेक्टेड मार्बल इज रेड. ओके, रेड मार्बल सिलेक्ट हुआ मींस, यानी टोटल नंबर ऑफ मार्बल इज 17, वो डिनोमीटर, एंड रेड मार्बल, नंबर ऑफ रेड मार्बल इज 5, दैट इज द 5/17. सेकेंड क्वेश्चन इज द वाइट, यानी बी इवेंट, यानी सिलेक्टेड मार्बल इज, सेकेंड क्वेश्चन सिलेक्टेड मार्बल इज व्हाइट. ओके, टोटल नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल इज 8. तो उसका मतलब एक बॉल, एक मार्बल जो सिलेक्ट हुआ वो कहां से हुआ होगा? 17 में से तो है ही ऑलरेडी, वो 8 में से भी हुआ होगा. ओके, नाउ दैट इज द p ऑफ b इज इक्वल्स टू टोटल 17 और व्हाइट मार्बल, यानी 8 में से 1 सिलेक्ट हुआ होगा, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ द व्हाइट मार्बल इज 8/17. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज नॉट ग्रीन and it's called the event C, yani not green. Not green means, okay, it's selected marble is red or white. Red or white, or means students होगा addition. okay, यानी red हो सकता है, otherwise white. यानी total कितना हुआ? 8 और 5 13.
तो नॉट ग्रीन मीन्स 13/17, उसका मतलब ये हुआ 17 में से तो एक सिलेक्ट हुआ ही, ओके, बट वो कहाँ से हुआ होगा, रेड और व्हाइट में से, दोनों में से ही एक होगा, यानी 13 में से एक होगा। ये स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। सपोज द ग्रीन मार्बल सिलेक्ट हुआ, तो ग्रीन मार्बल सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रीन यानी 4/17, तो नॉट ग्रीन यानी 1 में से कट करना होगा, ओके, दैट इज 13/17, ओके। तो दोनों मेथड से आंसर सही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है।